Hello, good morning, all of you. Now, today new topics. So please be alert, all of student of class 12. Now, the first topic you can see in my thumbnail. First topic is the electrical capacitance of a condenser. Electrical capacitance of a conductor. Okay. So all of students be alert and please see in my blackboard. Now topic electrical capacitance of a conductor. First of all, definition. Electrical capacitance of a conductor is the measure of its ability to hold electric charge. It means electrical capacitance only for judged by इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कि एबिलिटी है इलेक्ट्रिकल चार्ज को कलेक्ट करने की, इलेक्ट्रिकल चार्ज को मेंटेन करने की, और इलेक्ट्रिकल चार्ज को जो होल कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिकल चार्ज उसको मेंटेन करने का जो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. ओके, सो नाउ सेकंड पॉइंट, when an insulator conductor is given some charge, it required a certain potential. Full stop. If a charge Q put on an insulator conductor increase its potential V, then now Q is equal to capital Q. Capital Q is directly proportional to electrical potential, so Q is equal to CV. Q is equal to CV, where C is the constant okay. Now C is equal to Q upon V. It is called first equation and it is second equation. Write down, all of you students, be carefully. Is called the electrical capacitance of a conductor. Okay, now C is equal to Q upon V. So write down next point, capacitance is equal to Q, it means electrical charge, upon V, potential
Okay, write down. Now second point, the capacitance of a conductor may be defined as the charge required to increase the potential of the conductor. Second line, next point, it's depend upon the following factor. First, size and shape of the conductor. First point, size and shape of the conductor. Second, nature of its surrounding medium. And third, presence of the other conductor. Presence of the other conductor in its neighborhood. Now SI unit of capacitance, write down. SI units of capacitance the SI unit of capacitance is farad. It is denoted by capital F. It is denoted by capital F. So that farad is equal to coulomb upon volt. या 1 farad is equal to 1 coulomb upon 1 volt. We carefully write down. The SI unit is the main role of electrical capacitance of a conductor. Short form, 1 farad is equal to 1 coulomb per volt. Now 1 farad definition. If the addition of a charge of 1 coulomb to it increase its potential,
by 1 volt. Farad is a very large SI unit. Now other units, millifarad, 10 की पावर -3 farad, microfarad 10 की पावर -6 farad, picofarad 10 की पावर -12 farad. It is very important because is use of the numerical questions. So again repeat, millifarad it means 10 to power -3, microfarad it means 10 to power -6, picofarad it means 10 की power -12 farad. Write down. Next, dimension of capacitance. Dimension of capacitance. So 1 farad, 1 coulomb upon 1 volt. Now 1 coulomb, it means coulomb as it is, volt is convert तो वोल्ट किससे फाइंड आउट करेंगे? वोल्ट के लिए डेफिनेशन है, वोल्ट को फाइंड किया था V W अपॉन Q से. इट मींस वोल्ट को फाइंड करने के लिए W का मतलब है जूल और चार्ज का Q का मतलब है कूलम. तो यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे जूल पर कूलम कन्वर्ट हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन जूल में. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कूलम स्क्वायर अपॉन जूल में. और जूल इट मीन जूल किसकी SI यूनिट है? जूल SI यूनिट है वर्क डन की. तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो जूल इज इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर. नाउ फैराड F इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर. कूलम किसकी SI यूनिट है? चार्ज की. चार्ज किसके इक्वल है? तो यहाँ लिख लीजिए I इज इक्वल टू Q अपॉन T. सो Q इज इक्वल टू IT और I इट मींस एम्पियर. ओके. और T इट मींस सेकेंड. सो चार्ज की SI यूनिट होगी. सो राइट डाउन AS का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन इनटू मीटर. इट मींस फैराड को कन्वर्ट किया जा सकता है कूलम स्क्वायर अपॉन जूल में, या इसको फैराड इज इक्वल टू हो जाएगा इस टाइप से इसको लिखेंगे. तो यदि हम फैराड को हम लिखें तो ये कूलम स्क्वायर जूल -1, या फिर इसको लिखें तो न्यूटन -1 मीटर -1 एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर. इस टाइप से आपको इसको राइट डाउन करना है. राइट, ड्रॉ द बॉक्स.
बिकॉज सीबीएसई का न्यू पैटर्न जो आया है एमसीक्यूज से रिलेटेड, उस एमसीक्यूज के अंदर कि 1 फैराड या फैराड इज इक्वल टू तो कूलम्ब्स पर जूल या पर मीटर पर न्यूटन पर मीटर एम्पीयर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, इस टाइप से आपको वहां पर ऐसा यूनिट के लिए ऑप्शन मिल सकता है मल्टीपल चॉइस में। तो आपको इसको जो करेक्ट है उस पर टिक आउट करना है। नाउ ऐसा यूनिट, सो फैराड इज इक्वल टू न्यूटन की ऐसा यूनिट होती है m1 L1 T - 2, पावर क्या है -1, मीटर की L -1, ओके, एम्पियर एज इट इज, और सेकंड के लिए क्या आएगा T। इट इज क्लियर? प्रॉपर्ली राइट डाउन कीजिए, स्टेप भी चुकिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है फैराड किसकी इक्वल हो रहा है, फैराड की एसआई यूनिट किस में कन्वर्ट हो रही है। फैराड की एसआई यूनिट को हम कन्वर्ट किया क्योंकि एसआई यूनिट ही मेन रोल है फिजिक्स का न्यूमेरिकल के लिए, ओके। सो उसको बी केयरफुली राइट डाउन इन योर नोटबुक। या नाउ फैराड इज इक्वल टू, जो यहां से मैं इसको आगे के ले जा रहा हूं, ध्यान से देखें, फैराड इज इक्वल टू, इसको यदि हम कंपेयर करें तो यहां पर m-1 L-1 T+2 ये माइनस का मतलब ये माइनस का 2 प्लस बॉक्स बना दीजिए L-1 a स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके। अब यहां लिख लीजिए m-1 L-2 Ta2 और t की पावर 4, ये आपके डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस है, ओके। ये c की डायमेंशन आपने राइट डाउन की है, ये किसके इक्वल है c के, ये c की डायमेंशन आपने जो है राइट डाउन की है, यानी कैपेसिटेंस की डायमेंशन को आपने राइट डाउन किया है। सेकंड आपने फैराड किसके इक्वल है उसको आपने नोट किया। सेकंड थंबनेल देख रहे होंगे, आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर कैपेसिटेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम में हमारी अर्थ आइसोलेटेड सिस्टम है, इसकी कितनी कैपेसिटी है और कैपेसिटी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है उसको हम शो करेंगे। इसलिए सेकंड पॉइंट आप अपने यू कैन सी इन माय थंबनेल, सेकंड पॉइंट इज द राइट डाउन इन योर कॉपी, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड spherical capacitor। spherical capacitance, okay। First of all draw this sphere, center O, this is the radius capital R, and charge Q, capital Q, source charge Q are distributed on surface। You चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेन टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट और 2 का, इसलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने 3 टाइप्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
जो रीड कर चुके हैं मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिए बी केयरफुली। और मैं यहाँ आपको एक सजेशन और दूंगा कि आप पूरे वीडियो को आराम से पॉज करके नोट्स बना सकते हैं और पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि जो बच्चा पूरे वीडियो को नहीं देख रहा है, जो स्टूडेंट इस जो लॉकडाउन के टाइम पर जो उनके पास में जो ये टाइम मिल रहा है, ये बहुत गोल्डन टाइम मिल रहा है स्टडी के लिए, तो उस स्टडी के लिए के टाइम को जो है इस टाइम को बहुत आप जो है केयरफुली यूज़ करें और आप पूरे वीडियो को जो है पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, उसको आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। जब भी स्कूल रीओपन होगा, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, या कमेंट्स करके भेज देंगे मुझको, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करवाता रहूँगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है यदि इसको टोटल पूरे होल वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तो होल वीडियो को नहीं देखने से उनके बीच में उनको जो है स्टेप समझ में नहीं आएंगे। और 12th क्लास बोर्ड क्लासेज है, ओके। इसलिए बोर्ड क्लासेस होने के लिए मैं वापस आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे वीडियो को भी केयरफुली जो है देखें, नोट्स बनावें आराम से बैठ करके। अभी आपके पास में लॉट ऑफ टाइम है, इस टाइम का यूज करें आप, ओके। सो चार्ज क्यू, कैपिटल चार्ज क्यू, और कैपिटल चार्ज क्यू कौन सा होगा? प्लस क्यू। इट मींस प्लस क्यू चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द surface of spherical capacitance. Okay, draw this figure. Now first point we consider an isolated spherical capacitor spherical capacitor of radius capital R. The charge Q is uniformly distributed over its surface. Next point, the potential at any point on the sphere of the spherical conductor will be पोटेंशियल को जो क्रिएट होगा, पोटेंशियल जो क्रिएट होने वाला है वो पोटेंशियल आपके लिए, वो पोटेंशियल हमने फाइंड आउट कर रखा है कि जब पोटेंशियल क्रिएट होता है तो V KQ के कॉन्सेप्ट में क्रिएट होता है। और ये हमने रीड कर लिया है, आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है, पॉइंट चार्ज को क्रिएट किया था, पॉइंट चार्ज के बाद में डायपोल से क्रिएट करवाया था, इन्फिनिटी पॉइंट चार्ज को लेके आया था मैं, तो वहां पर पोटेंशियल था वो V KQ/R। नाउ K इज द कांस्टेंट, तो ऐसा है। Now convert the 1 upon a 4 pi E naught Q upon R. It is clear? So potential is value 1 upon a 4 pi E naught Q upon R. Now capacitance C is equal to V upon Q is equal to क्या था? C is equal to, हाँ भूलना नहीं है, Q upon V. Yes, write down Q upon V. So C is equal to Q, V value is putting 1 upon a 4 pi E naught. ओके, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, E naught को लिखना है तो E को प्रॉपर्ली बनाएं और उसके बॉटम में एक इस तरह का नॉट लगा जाए। ऐसा नहीं है कि इसको इस टाइप से लिखें आप, Q
अपॉन आर। सो C is equal to 4 pi E naught R, and here is the Q, in Q is cancelled out, so C value is the 4 pi E naught R. It means C is directly proportional रेडियस, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेडियस के। यदि जिसका रेडियस मैक्सिमम होगा कैपेसिटेंस भी मैक्सिमम होगा, जिसका रेडियस मिनिमम उसकी कैपेसिटेंस मिनिमम। सो राइट डाउन, बी केयरफुली। C proportional R, राइट लीजिए नीचे, द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर is proportional to its radius. Next point, let us calculate the radius of the spherical conductor of capacitance is 1 farad. My dear friends, जो ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर रेडियस की वैल्यू क्या रहेगी? रेडियस की इसका कहां पर हमारा होगा कि कितने रेडियस के ऊपर कैपेसिटेंस मैक्सिमम रहेगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक ब्रीफली अपन जो है कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इसकी जो है ऐसा इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में जो फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले को यदि मैं इस टाइप से जनरेट करूं, C is equal to 4 pi E naught अपॉन R, जो फॉर्मूला जनरेट हो गया है, इस फॉर्मूले को कैपिटल R is equal to 1 upon a 4 pi E naught, ओके, और इसके मल्टीप्लाई में C कर दूं। ओके, अब आपको थोड़ा सा और एक और आपको MCQ के रिलेटेड, इट मींस आप देख रहे होंगे C KC रेडियस है, वो क्या है? KC है। ओके, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई E नॉट किसकी वैल्यू है? K की वैल्यू है। ओके, अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो K की वैल्यू क्या थी? 9 to 10 की पावर 9। ओके, और उसको जो है किसमें कन्वर्ट करना है, इसको वैल्यू लिख लीजिए। और ये जो वैल्यू की जो ऐसा यूनिट होती थी वो आपको सबको मालूम होना चाहिए, वो ऐसा यूनिट एक बार वापस लिख रहा हूं यहाँ पर। के निकालना है 1 अपॉन 4 पाई E नॉट लिखते थे, तो मेरा प्रीवियस वीडियो जो फर्स्ट चैप्टर का है 9 to 10 की पावर 9, बोलिए क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1। वेरी गुड, ये इसकी ऐसा यूनिट होती थी के की। अब इसको इस ऐसा यूनिट को कन्वर्ट किया जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1 2 को मिली किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए कोई फैराड से रिलेशन आ रहा है? अभी मैंने इसकी ऐसा यूनिट निकाली है, फैराड F इज इक्वल टू, देखिए फैराड किसके इक्वल हुआ था? जूल स्क्वायर कूलम माइनस 1 के। वेरी गुड। और कोई बता सकता है किसमें कन्वर्ट करवाया था मैंने इसको? न्यूटन माइनस 1 और मीटर माइनस 1 और एम्पियर और सेकंड स्क्वायर, ये कन्वर्ट होकर के आए थे हमारे पास में। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पर इसको जो है कन्वर्ट करके लिखेंगे हम
तो इसको जब कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये लिखेंगे मीटर फैरेड -1 इनटू कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फैरेड है ये ऑलरेडी। यहाँ पर क्या है देख लीजिए, न्यूटन पॉजिटिव मीटर पॉजिटिव, ओके, और ये क्या है कूलम। इस कूलम का मतलब ये वैल्यू दे रखी है, ओके। तो इस वैल्यू को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों पॉजिटिव चाहिए और एक और एक्स्ट्रा और है ये, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ये ऐसे भी लिख सकता था, ओके। और इसको ही कन्वर्ट करके मैंने आपके सामने रखा है। तो जैसे ही मैं k की वैल्यू के फॉर्म में लिखूंगा तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो हो जाएंगे पॉजिटिव और ये वापस नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करना है कि m1 और c-2, तो फैरेड को होना पड़ेगा 1 फैरेड 1 मीटर से और मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड में। देख लीजिए एक बार करके बता देता हूँ, मीटर ये पॉजिटिव और ये -2 और दोनों बोथ साइड में मीटर से मल्टीप्लाई किया, ये मीटर और ये कन्वर्ट किसमें हो गया फैरेड -1 में। ये मेन ऐसे यूनिट को मैंने इस टाइप से इसको कन्वर्ट किया, इसको राइट डाउन करा, ये फ्रॉम मेन चीज है, ओके। अब यहाँ से देखिए तो फैरेड कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो R = 9 × 10⁹ मीटर। अब 10⁹ को इस टाइप से लिखे हैं, R = 9 × 10⁶, ओके, 3 रहा उसको किलोमीटर। ये मेन चीज हो गई, इट मींस रेडियस है वो 9 × 10⁶ किलोमीटर हो गई। यदि किसी आइसोलेटेड सिस्टम की या स्फेरिकल कैपेसिटर को हम जब रोल में लेते हैं और उसकी कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं, तो कैपेसिटेंस को जब डिफाइन करेंगे तो उसका वैल्यू होगा C = 4πe0r। और यदि जब इसका रेडियस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस के। जब मैं इसका रेडियस फाइंड आउट करूंगा तो रेडियस की वैल्यू को कुछ इस टाइप से जनरेट करूंगा कि 1/4πe0 × c यानी कि kc, ओके। k की वैल्यू को लिखूंगा, तब इसकी SI यूनिट के लिए डिस्कस करेंगे। तो ये SI यूनिट था वो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, उसको अभी हमने फिलहाल फैरेड को जो है वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया था, इससे इसको कन्वर्ट करके लाएंगे। अब हमारे पास में जो रेडियस की वैल्यू आ रही है वो 9 × 10⁶ किलोमीटर आ रही है। ये स्फेरिकल कैपेसिटर के रेडियस की वैल्यू है, ओके। तो ये आपने सेकंड पॉइंट के थंबनेल को देखे होंगे, इसको मैंने डिस्कस किया। इसको कह सकते हैं ये स्फेरिकल सेल वाला कंडक्टर है जिसकी रेडियस को अपन डिस्कस कर रहे हैं। राइट डाउन हो गया टोटली। फ्रेंड्स वापस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे ढंग से समझें, जिससे कि हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस कर सकेंगे। इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में वापस मिलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस के साथ में। कैपेसिटेंस का हम जो है प्रिंसिपल को डिजाइन करेंगे, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस को हम रीड करेंगे और पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के अंदर भी क्या क्या आएगी चीजें उसको पर डिस्कस करेंगे। इसलिए थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स और watching this video. Thank you.